Here's another session of therapy session. Well, last video you saw about some people we knew. In this video, let me just introduce or rather start by saying again, I am no psychiatrist. I just like talking. Talking as in talk, blah, 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 but with useful information, of course. Not me, the guests have useful information. So let me just first introduce my co-hosts, or rather mi amigos, mi compadres, Jaydeep and Pratyush. Hi. And as usual, of course, there's this drink in hand. And today, I'm really excited for this episode, especially because we have two very talented guests on the show. And that's because I'm not talented as much. Forget as much. None of us three are as talented as these two. So let me just start with them. Ashlyn and I kind of have to talk about this Jairaj, right? But Yeah. your name is Jairaj Singh Jadeja. Start Yeah, with that. so my name is Jairaj Singh Jadeja. Jairaj Singh is my actual name. So because राजपूत एकले नाम में जयराज सिंह आगे आ जाता है, but from my childhood the teachers and everyone has been calling me only Jairaj because Jairaj Singh is too formal. Because So I knew Jairaj as well. Yeah, I prefer Jairaj. But official documents है Jairaj Singh है. What about Ashlyn? Ashlyn, as you know, is a good friend of mine as well, and he is pretty talented as Jairaj as well. So I would like to add that Jairaj C Jadeja नहीं है, it's Jairaj C Jadeja क्योंकि उसके पापा की initial C है, so there is one more C in his name. And yes, thank you for calling us here, having us here, and you guys are doing an amazing job. I saw the first video and it was must entertaining, and I had all my laughs and also the. Okay, you know what? उसके लिए bro, we have to drink to that. Cheers, yeah, cheers, yeah. Thanks. सब एक साथ में एक साथ में 1 2 3 cheers. Actually Ashlyn का भी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है. Ashlyn पूरा नाम तो बता. पूरा नाम काफी लंबा है, तो साउथ इंडियन का होता है, तो Alex is not my surname, it's my father's name. तो ऐसे हमारा ऐड ऑन होता रहता है, तो पापा के पीछे दादा का नाम, दादा के पीछे दादा का नाम, so that way my और हमारे नाम के आगे हमारे घर का नाम आता है. तो पुत्तन परम्बिल is my house name. पुत्तन परम्बिल, Ashlyn, Alex, Lucas, Thomas, Baby is my full name. तो इसमें सरनेम कहाँ पे होती है? सरनेम नहीं होती, साउथ इंडियन मलयालीज में नहीं होती, तो साउथ इंडियन क्रिश्चियन में नहीं होती. और हर घर का नाम होता है क्या? हर घर का नाम होता है क्या? मतलब मेरे में भी कैसा है कि मम्मी का नाम में करी है. Her house name is Curry, but my dad was born in Tamil Nadu. That's why in my name is Pranay Janardhana Reddy. Janardhana is my dad's name. Okay. देख ये पता नहीं था जेडी पर प्रतीश को. मुझे पता था. So guys, coming to you, like what have you been doing this lockdown? Lockdown it's almost 2 months, and you guys are like, this is your last year technically speaking in college, so you didn't get to celebrate. क्या किए थे in this past 2 months? So एक्चुअली ये हमारे आर्टिस्ट के लिए एक पैराडाइज जैसा था, बिकॉज नॉर्मली स्टडीज और असाइनमेंट्स या हमारे फॉर मी 6 months की इंटर्नशिप थी द लास्ट सेमेस्टर, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है. तो आफ्टर 17th March आई हैव लाइक नॉट सेट माई फुट आउटसाइड द मेन डोर एक भी बार नहीं. दिन में मैं उठता हूँ, सुबह मेरा जो रूटीन होता है रियाज का, मेडिटेशन का, वो करता हूँ, एंड शाम को रियाज करता हूँ. सो जब सब शुरू था इंटर्नशिप और सब, तो आई यूज्ड टू टेक आउट 2 to 3 hours. अब दिन के 6-7 घंटे आई कैन इजीली सिट एंड आराम से आई कैन गिव टाइम टू रियाज, देन खुद अपने नए नए सॉन्ग्स में एक्सपेरिमेंटेशन एंड अलग अलग क्रिएटिविटी सब निकालता रहता हूँ. एंड घर काम तो अब है ही सब, झाड़ू कचरा पोछा खाना बनाना, वो तो that's become like a way of life. I mean, but of course. Ashlyn, now what about you? So this is how my room is looking for the past 2 months. मेरा गिटार बाहर होता है, मेरा ड्रम्स होता है. So that is all I do all the time. And of course Big Boss चाहते हैं कचरा कर दो, Big Boss चाहते हैं तो कमा दो, तो वो तो होता ही है. So there have been duties divided for a week. मेरी मम्मी संडे को टाइम टेबल बना देते हैं, ये वाले हफ्ते में मेरा छोटा भाई झाड़ू करेगा, मैं पोता करूंगा, पापा बर्तन धोएंगे और मम्मी खाना बनाएगी. और फिर ड्यूटी स्वैप होती रहेगी ताकि वो क्या बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए एम्प्लॉय का.
इसलिए क्योंकि काफी लंबा टाइम है, 3 महीने कंटिन्यूस पोछा मारने में किसी को कंटाला भी आ सकता है, तो फिर पोछा से कभी कचरा मार लेते, कभी बाथरूम धो लेते, तो काफी कुछ किया है। A lot of new experiences, like I cleaned my cupboard after 6 years of shifting to this place, and we learned a lot of technology. अभी पहले हम लोग we used to make music videos एक जगह पे इकट्ठा होके फिर हम साथ में जैम करके फिर करते थे, बट we did not have that क्या बोलते हैं, वो नहीं कर सकते थे, हम अभी मिल नहीं सकते थे, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते थे, तो I used to record my guitar over here and then send it to Jairaj, then he record his vocals and send it to the other artists. So we have a project coming, आ जाएगा, it is soon, it will be soon on my page. So it is a song that we'll record, we have recorded and we'll post it on our IGTV. वैसे ही किया, so it is all from home. So I've recorded my part from my place on my phone, then sent it to Jairaj and then mixed and everything. So that is something we learned. अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम ये पार्ट कभी देखते ही नहीं. So we learned a lot, maybe video editing and mixing and a lot of networking that we did. So I got in touch with an artist from France, and we are collaborating on a project soon. So that is something happened during the lockdown. अगर lockdown नहीं होता तो I would be busy roaming about और कुछ और काम करते करते, तो इतना टाइम नहीं मिलता. और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गया. पहले मेरे शायद हफ्ते में 2 हफ्ते में एक स्टोरी होती थी, अब एक दिन में 6-7 स्टोरियां होती है, और पोस्ट that is something positive that happened. And so this is what happens when I start talking. I can't stop, so you can stop me whenever. तो मेरे को जब बोला था रेड्डी ने कि आधे घंटे का होगा चिल, मैं समझ गया था कि मैं आधे घंटे तक बोलूंगा, बाकी आधा घंटा इनका होगा. But अच्छा है ना, like it's good that you're talking. So point is यही है, that is जो बात करने बात करो point को, इसलिए तो अच्छा रहता है. So coming to your story, actually like इसलिए हम तीन भी ये चालू किया अभी. like हमारा भी प्लान था चालू कर दिया. हाँ, लॉकडाउन की वजह से हम तीन का ही प्लान था लॉकडाउन से पहले एक्चुअली. सो अभी लॉकडाउन हुआ तो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ये स्टोरी शेयर किए थे. मैंने 4 पेज का स्क्रिप्ट लिख दिया और जेडी तो अभी तक पढ़ा नहीं. तो इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैड टाइम टू बी लाइक ओके, अभी टाइम है, फोकस करते हैं, एंड देन वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन. So I guess yes, for a performer, for somebody who's working in terms of like, you know, for their passions, music or even talking like or comedy, there is a good time and good time to focus. What do you say? Focus के लिए अच्छा था इस टाइम. लॉकडाउन आप देखो, नॉट ओनली आर्टिस्ट, हर पर्सन के लिए हैज बीन बेनिफिशियल, क्योंकि दे आर ईदर गेटिंग इन टच विद देयर लॉस्ट हॉबी और दे आर गेटिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव विद द सोशल मीडिया, जो पहले नहीं था. अब देखो मेरी मम्मी यूट्यूब पे से देख देख के शी ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट डिशेस एंड रेसिपीज अलग अलग. अब कोई और देखो जो पहले डांस करता था अब नहीं करता है, बट अब देखो 2-3 दिन दे आर पोस्टिंग IGTV वीडियोस. सो दैट वे इट इज अ गुड ब्रेक फ्रॉम यू नो द रूटीन एंड द वर्क, and people are working on their self improvement, their mental health. So that has been really good. There's a really famous guy in basketball. I don't know तुम लोग NBA देखते हो कि नहीं, but he was like, if after this lockdown, you guys have, if people haven't come up with a new skill or a new platform, something which they want to do, that means you didn't have the discipline to do anything before. So इसलिए like that's why you guys are like really, I applaud you guys क्योंकि तुम लोग you had a passion to do it, and then तुम लोग देखो we have a new single coming out, and for that I'd like to drink. Good luck on your new single, on your video. जैसे जयराज मैं पूछ लूं जयराज, मेरा जब भी तुझे देखा है ना, अपनी कभी बात नहीं हुई ना वैसे, पर मैंने देखा बहुत है कि परफॉर्मेंस तेरा हर बार होता ही है स्टेज पे. तो मैं शायद मैं 4th सेमेस्टर में था तब से मैं तेरे को देख रहा हूँ स्टेज पे, तो हर बार मैंने तेरे को ऐसे कुर्ते में देखा है. ऐसा कोई रीजन है या ऐसे ही मतलब? नहीं मतलब नॉर्मली तो मैं शर्ट में भी होता हूँ, पर आपने जो परफॉर्मेंस देखे सारे वो कुर्ते वाले ही होंगे, और कुर्ते भी मेरे पास गिन के 2 हैं. तो हाँ मतलब वो तो 2 फर्स्ट सेकंड ईयर के. सो अभी बेसिकली अभी 2, एक तो ब्लू कलर वाला होगा और एक एकदम ब्लैक एंड ऑरेंज का मिक्स है. ऐसे मेरे मुझे ना आज ही तेरी वो सरनेम पता चली, जाडेजा. मुझे पहले लगता था गढ़ी है, तो जब भी देखता हूँ तो आदित्य गढ़ी जैसी फील आती है ऐसे कुर्ते में.
हम जयराज की बात है कि अगर कोई चीज एक्स करने से मतलब इफ समथिंग रिक्वायर्स टू बी डन एंड उसके लिए एक्स एफर्ट डालना हो ना, तो जयराज 2x एफर्ट डालेगा. जैसे अभी बैठे हैं हम लोग, इंटरव्यू चल रहा है, तो यू जस्ट हैव टू वेयर द शर्ट. मैंने नीचे ट्रैक्स पहने, शॉर्ट्स पहने. आई थिंक तुम तीनों में से भी किसी ने जीन्स तो नहीं पहने हुए, बट जयराज इज ऑल ड्रेस्ड अप. एग्जैक्टली. तो उसने शर्ट चढ़ा दिया, उसके नीचे जीन्स भी पहने और उसके नीचे आई थिंक सॉक्स भी पहने होंगे. तो दैट इज द वे जयराज इज. एंड एनीथिंग, पढ़ाई में ले लो, आर्ट्स में ले लो, सिंगिंग में ले लो, म्यूजिक में ले लो, और फ्रेंडशिप में ले लो. सो ही इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड एंड वन स्टेप मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. तो आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो टैलेंट, अरे तो एश्लिन जितना का भी दूर मैं ऐसा उसके लिए कम है. नहीं नहीं, तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स तू जयराज के लिए, दैट इज लेस, क्योंकि इतना सारा टैलेंट जो तुमने देखा है इतने टाइम में उसको स्टेज पर और वीडियोस में, बट उसके अलावा ही हैज बीन अ कांस्टेंट एंड कंसेक्यूटिव विनर ऑफ द excellence overall excellence awards of IMBA. So he has been the top, मतलब first rank throughout the 5 years of academy and also overall excellence. So that is something. भाई हम तो पास ही हुए, वो भी आगे में देख के, आगे से देख के. तो यार, I don't think you can, Jairaj, you have to drink to that यार. Ashlyn इतना compliments दे. Thank you, Ashlyn. But actually, coming to that, you know, I'm speaking of, Ashlyn said you put 2x efforts into everything. I've seen you perform, and I've seen Ashlyn perform as well. You don't look like that in real life. Like, if you understand what I mean, like, तुम्हारा passion, your performance है. Ashlyn is like one of the cool, chillest guys I've known. Like, you know, we just like, yeah, bro, what is it, bro? Let's talk, bro. But stage में आके he owns the stage. Same with you. When you start singing, you own the stage. Talk about your stage performance and your other persona. Like, that's a different person from your real life people. So म्यूजिक में ऐसा है कि पर्सनली मेरे लिए व्हेन आई स्टार्ट सिंगिंग, सो मेरे को भी नर्वसनेस होती है. एश्लिन के साथ मैं साउंड चेक पे बात करता हूँ कि भाई आज ऐसा है, यहाँ पे मेरे को ऐसा थोड़ा लग रहा है, तो वो मेरे को हेल्प करता है. उसको कुछ होता है तो आई ट्राई टू सपोर्ट हिम एंड अदर आर्टिस्ट हु आर गोइंग टू परफॉर्म विद अस. बट देन वंस द म्यूजिक स्टार्ट्स एंड ये ड्रम पे कुछ नया ऐसे रिदम दे दी एंड स्टार्ट होता है, तो हमारा आई कांटेक्ट होता है, वी स्माइल टू ईच अदर एंड देन वी आर लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड. आप हमारा कोई भी परफॉर्मेंस का वीडियो देखो, हमारे आई कांटेक्ट के बाद का परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा. ऐसे एज इन अच्छा होगा, एज इन द परफॉर्मेंस कनेक्शन विद द ऑडियंस एंड स्टेज पे प्रेजेंस एंड वैसे. एश्लिन का तो करिश्मा और पर्सोना ही वैसा है कि वो स्टेज पे चढ़ा मतलब स्टेज उसका. No, because trust me, like, you know, Ashlyn, I've known. You have to talk about that, Ashlyn, because I know you as a person and I know you on stage as well. Those are two different people. Exactly. So when I am the same person when I'm on the stage and off stage also, but एक sense of responsibility आ जाती है जब तुम stage पे होते हो. These people who sitting in the audience are here to not only enjoy but they look up to you. If there are a lot of juniors that come to us and मेरे पास भी, जयराज के पास भी, तो वो आके बात करते हैं कि भैया मैं गिटार सीख रहा हूँ और मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो हाउ शुड आई प्रोग्रेस इन दैट. तो इफ वी सेट अ रॉन्ग एग्जांपल ऑन द स्टेज, लाइक हम कैजुअली ले रहे हैं और ऐसे लाइक वी डोंट परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज और वी डू नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस, दैट पुट्स अप अ रॉन्ग मैसेज. तो अगर उसके बाद वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं देखने के लिए. तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड अ लॉट ऑफ सीनियर्स ऑफ आर्ट्स जिनको देख के हम सीखे. तो वन ऑफ देम इज अर्पित, and Arpit is the one who has like pulled me into music. So while I was in school, I was never into music. I was into sports, and then this happened, and then फिर मैं drum पे बैठ गया और फिर उठा नहीं. तो कॉलेज में एंटर होते ही अर्पित एंड a few more musicians like मीनाक्षी and अभिषेक and they all we all met, and फिर हमने फ्रेशर्स के लिए प्रिपेयर किया. That was the first stage performance of mine. और तभी मुझे समझ में आया कि जो जितना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए उससे ज्यादा तुमको अपने साथ जितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एंड द सेम कॉन्फिडेंस ऑडियंस को तुम्हारे लिए होना चाहिए कि भाई एश्लिन आ रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जयराज आ रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सो आई शुड सिट देयर. सो दैट शुडंट गो डाउन. दैट इज द ओनली मोटो वी हैव व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग, ताकि
मेरा ये परफॉर्मेंस देख के अगले 3 परफॉर्मेंस तक उनको याद रहे कि एक्चुअली ने 3 परफॉर्मेंस पहले ये किया था, वो अच्छा था, भले ये वाला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ. एंड दैट ऑल्सो like motivate them to maybe view my video on IGTV or look up to something that I'm involved into, or the next show that we'll be performing. So that is there. So we have to maintain that on the stage, and obviously the love and support that we get. So अगर लोग आएंगे नहीं देखने तो फिर हमको परफॉर्मेंस करने में मजा नहीं आएगा. So it's not that अभी कुछ शोज ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आई थिंक 30 लोग आए. कॉलेज का ही शो बोल रहा हूँ, छोटे से रूम में शो था. वी एक्सपेक्टेड अ क्राउड ऑफ 100, 120, 150, बट ओनली 30 पीपल केम. बट दैट शो शुड नॉट बी अ फ्लॉप बिकॉज कम लोग आए, इसलिए ऐसा नहीं कि हम कम परफॉर्म कर रहे. बट वी हैव टू मेंटेन दैट परफॉर्मेंस ताकि ये 30 लोग आगे जाके 30 लोग को बोले यार तुमने परफॉर्मेंस मिस किया. और not only for the fame but the love and support that we get from the audience, that is the main thing, and that is what keeps us going and motivated on the stage to deliver more and better. Let's drink for one for love and support. Love and support, King. Because I can relate to that in the sense, like, as Ashley knows, I'm a stand-up comedian and perform on stage most of the times. I don't know if Jairaj knows that much or not, but in stand-up comedy, like, if one joke is gone wrong, मान के चल, some of the audience don't like it, I can recover immediately. That's based on spontaneity. But in music, if you miss a note, how do you guys recover? क्योंकि you guys know you miss a note. Audience को भी पता चलता है क्योंकि something is missing just sir. And I'm pretty sure if you perform for long enough, that does happen to you guys. Or has it ever happened? इसके बारे में if you have any experience? It बहुत होता है ऐसा तो, because sometimes वो technical issues भी होता है जिसकी वजह से you miss a beat. कि सामने भाई मॉनिटर है वो ऑफ हो गया तो मिस हो गया बीट. तो with practice and experience you know how to cover up your mistakes. You know how to on spot improvise your mistake. कि तुम मिस्टेक हो गई पर उसको इम्प्रोवाइज कर दो कि लगे ही नहीं मिस्टेक, ये पर्पसली किया ऐसा ही दिखाओ. और तुम फिर वंस आफ्टर अ पॉइंट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अर्पित एज ही सेड एशलिन के साथ रह के, बाकी मेरे सीनियर्स के साथ रह के, आई लर्न वन थिंग कि मिस्टेक हो दिखना नहीं चाहिए एक्सप्रेशंस वाइज. सो वो भी बहुत होता है. सो स्टेज प्रेजेंस में एवरीथिंग, बॉडी लैंग्वेज, तुम मिस्टेक हो तो ऐसा मत एक्ट करो कि वो हो गया परफॉर्मेंस एंड नर्वस मत हो जाओ. सो यू ट्राई टू पिक इट अप एंड एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग. द ऑडियंस आल्सो नोस के भाई मिस्टेक होती है लोगों से. सो मिस्टेक तुम उस माइंडसेट में मत चलोगे कि गया परफॉर्मेंस, बिकॉज आफ्टर इफ यू गो इनटू दैट माइंडसेट तो परफॉर्मेंस डाउन हिल जाने वाला है. तो वैसे क्योंकि Ashton, I've seen this, like it's not just because yes, we are human, like Jairaj mentioned, mistakes तो होते हैं obviously, but even when you're performing उस टाइम हमारे मन में क्या होता है, we have to give the best possible performance, कुछ भी हो जाए, या कॉमेडी हो या म्यूजिक हो या जस्ट गिटार हो, बट वो बीट मिस हो जाए हमारे अंदर चलता है कि भाई am I doing this wrong, like if something has gone wrong. So how do you recover from that mentally? I'll tell you one funny incident Ashlyn का. उसका उसकी ड्रम स्टिक का बहुत ही कॉमेडी वो इंसिडेंट्स रहते हैं. Ashlyn जरा कंटिन्यू द स्टोरी. तो फिर I'll just continue. So हमारे काफी 2-3 परफॉर्मेंसेस में, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में हमारा ऑडिशन था, सो एशलिन वाज ऑन ड्रम्स, ठीक है. तब उसका राइट हैंड के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की स्टिक गिर गई नीचे फ्लोर पे बजाते बजाते. सो ही कंटिन्यूड विद लेफ्ट हैंड. आगे गिटारिस्ट था, उसने उसको बोला स्टिक पड़ी मेरे को उठा के दे. एंड उसका ऐसा होता है, मतलब वो पसीने की वजह से ग्रिप छूट जाती है कभी कभी ड्रम्स की, तो भी बट ही कंटिन्यूज विद द लेफ्ट हैंड एंड लाइक पता नहीं चलता कि ड्रम स्टिक गिर गई है. एक्चुअली ऑडियंस को तो पता ही नहीं चलता है. एट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो एड्रेनल से एकदम रश आ जाता है स्टेज पे जाके, तो थोड़ा जोश आ जाता है. तो आई प्ले द ड्रम्स लाउड, तो बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स द स्टिक ब्रेक्स और वो स्टिक टूट के कहीं और चली जाती है. तो आई हैव द हाफ स्टिक इन माय हैंड एंड द हाफ स्टिक इज समवेयर नियर द स्टेज. एक बार गिटारिस्ट के पास लगते लगते बज गई थी, एक बार साउंड वाले तक पहुंच गई थी, और ऐसे सब काफी सीन हुए. तो इसमें भी हुआ है. तो फिर आई हैव द हाफ स्टिक इन माय हैंड बट यहाँ टूटा हुआ है, तो अगर ये मारूंगा तो ड्रम फट जाएगा. तो फटाफट तो मुझे वो कुछ भी करके उल्टा करके फिर मैं आधे स्टिक से बजाता हूँ. ऐसी भी काफी चीजें हुई. एंड आफ्टर सब एक्सपीरियंसेस आई हैव 4-5 स्टिक्स अराउंड मी व्हेन आई एम प्लेइंग, ताकि टूट जाए या तो गिर जाए तो फिर आई हैव अनदर वन टू प्ले विद. एंड ऑल्सो while performing we are not just musicians and not just a band, but the connection that we have also off stage that helps us performing.
तो मैं, जयराज, अर्पित, सरयू, रायन, आयरन, ये सब की बात हो जाए तो इफ अगर एक एक नोट या एक कॉर्ड या एक सीरीज ऑफ कॉर्ड्स बज जाए तो फिर बाकी सबको पता चल जाता है कि ये कौन सा गाना बज रहा है, या तो व्हाट हारमोनीज डू वी आर एक्सपेक्टिंग, मेरे को कैसा बैकिंग चाहिए, यहाँ पे क्या फिलर चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट का कब सोलो आना है. तो दैट इज in our mind due to the connection that we have apart from performing on the stage or being a band. And so that helps a lot. कि अभी मैं और जयराज भी अगर अकेले परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ड्यूओ एंड we are out of songs, then I just start playing some chords and he sings around 6-7 chords, 6-7 songs on those particular chords. So that is the level of understanding and the bond we have. So that also helps us on the stage. One thing I want to ask is, it might be a touchy subject because I've seen this with performers. Like, you know, once we start to become big, हमारे अंदर भी एक ego आ जाता है. Come on, it's human nature कि भाई हम अच्छे हैं, तू कौन है बोलने के लिए. Especially Ashton, you are a person who manages and talks to a lot of these people in entertainment. How do you manage those personalities? Because I'm pretty sure if I'm there in that situation, I would lose it. But you're cool, and Jairaj knows as well. He's always cool. So how do you do that? Jairaj is a big MS Dhoni fan. तो धोनी जो अनटोल्ड स्टोरी में ही एक डायलॉग है धोनी के पापा का कि अच्छा खेल रहे हो पर कपाल पे मत चढ़ने देना. So this is what we follow and what our seniors and what our fellow artists have taught us, and also we teach to our juniors and tell them क्योंकि ये ऐसी चीज है क्योंकि this is glamorous to see and to experience. So while all the girls see Jairaj performing, so after each performance he has at least 25 follow requests pending soon after the performance. तो अगर वो बात सुन के अगर जरा ऐसा हो जाए कि ये आज तो 25 आए, कल 30 आएंगे, उसके बाद 35, तो वो जयराज को ऊपर शायद थोड़े टाइम के लिए ले जाएगा, बट फिर वो ईगो की वजह से वो नीचे आएगा. That has that I've never seen that in Jairaj or any of the artists I work with. So even Siahi for that matter. So Siahi has been doing a lot of things and he's been recognized all over India during this lockdown. काफी सारे आर्टिस्ट के साथ लाइव भी गया, बट दैट ईगो एंड एटीट्यूड वाली जो बात है वो उसमें अभी तक नहीं आई, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अगर हमको लोगों ने बनाया, जितने भी है, wherever we are and how much known we are, that is only because of the audience and you people and the support that we get from you all. तो अगर हम तुमको एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे. तो इससे आगे बढ़ना तो क्या, इससे पीछे ही आने वाले. तो दैट इज देयर. एंड Jairaj, आई एम सेइंग दिस ऑन लाइव ऑन दिस इंटरव्यू कि Jairaj सबको डीएम के रिप्लाई देता है, जिसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी हो, इसको भी डीएम करना हो, प्लीज डू दैट. आश्लिन देता है क्या? आश्लिन तू देता है क्या डीएम? आश्लिन बहुत सिलेक्टिव है. आश्लिन सबको ऐसे ऐसा कोल्ड रिप्लाई दे देता है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले थोड़ा वर्क था, तो इसलिए कुछ आता है. आई एम द वर्स्ट पर्सन टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स. मेरे को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता तो या तो मैं ब्लश करता हूँ या तो फिर थैंक यू वाला जैसा कोल्ड मैसेज देके आई कट द टॉपिक, ताकि ज्यादा बात ना हो उस पर. क्योंकि मुझे तारीफ लेना पसंद नहीं, करना ठीक है, जो डिजर्व करता मैं उसकी करता हूँ तारीफ, बट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो दैट इज द, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक जो फर्स्ट आइस ब्रेकर मैसेजेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हमको जो आते हैं वो. तो उससे आगे बात जाती नहीं क्योंकि मुझे रिप्लाई करना आता नहीं. But actually in my experience, if that happens it's like good, क्योंकि compliments आ रहे तो ice breakers आ रहे तो मतलब they want to do something उसके बाद, तो that's good. That's good business for both of you. So but if like, you know, if let's say this is my last question, and one thing I want to ask is, like, as musicians who have followed your passions, because this is, I'm pretty sure it's your passion, like for up and coming music person who's interested in music, what would be one advice you'd want to give to them, each of you? Ashlyn, तू बोल रहे? बोल. So one advice that I would give is कि people run after you know, short term results. उनको सब बहुत जल्दी चाहिए results. But any art, if you take stand up comedy, if you take music, if you take dance, it requires practice and dedication.
एंड तुम प्रैक्टिस करो एवरी डे. इफ नॉट, चलो मैं तो क्लासिकल सीखता हूँ और मेरे पास टाइम है तो मैं करता हूँ. इफ यू आर बिजी विद अदर वर्क, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स इवन हर रोज का प्रैक्टिस करो. एंड वो प्रैक्टिस इट स्टार्ट्स ऑन, इट कीप्स ऑन क्यूमुलेटिवली एडिंग, यू नो. एंड फिर वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा, पर डेफिनेटली दिखेगा, जरूर दिखेगा. पर शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स में पीछे लोग कह रहे हैं कि मैं हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ बट 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया. So you just have to, you know, constantly be with the art. And other than these things, these are the external things. Personally, internally तुमको वो satisfaction देता है. Mentally, mental health के लिए अच्छा है. Music में रियाज करते हो, it is kind of pranayam and meditation. So उसके other benefits ज्यादा है. So just stick with it. Continue करो passion. तुमको जहाँ मन लगे कि आज यहाँ परफॉर्मेंस है, वहाँ जाना है, चले जाओ, परफॉर्म करो, कवर्स बनाओ, जो करना करो, बट बी विद द पैशन. छोड़ना मत कभी. अपॉर्चुनिटीज आएगी, अपने आप आएगी. Let's drink once to sticking with it. That's a good Yeah. message, by the way, Jairaj. Seriously. Thank you so much. Ashlyn, any opinion from your side? I am very bad at giving advices. Honestly, like just based on your experience, like what do you think? So that is the thing. So I have never taken advices. I listen to them, but मैंने वही किया जो मुझे करना है. So just be positive and be you. That is the thing. So there are a lot of people who start into any kind of art or anything. जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, सिंगिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, डांसिंग हो गया. तो they try to imitate their idols. So if so initially थोड़े बाल बड़े थे तो मेरे को बोलते थे कि तू जाकिर खान से थोड़ा रिजेंबल करता है और ऐसे रखता तो सेम रखता है और ऐसे अच्छा ठीक है तो वैसे सेम लगता था. तो दैट, और तब मैं थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी पे ट्राई कर रहा था. मैं कर नहीं रहा था पर ट्राई कर रहा था. Remember, that's how we met in the theater club. Remember, like, you know, I came to theater club. That's how we both went to theater club. Exactly. You actually, so I did a bit where I was an African, and he was like, "Are you actually from Africa?" Like, or was that just an accent? Exactly, वो accent था. और बाकी सब लोग गुजराती और कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहे भाई. जब से आए रिहर्सल में तब से इंग्लिश में बात कर रहे हो ना. सही में अफ्रीकन. तो exactly, and Ahmedabad University has given us so much. Okay, if I was not in the university, I wouldn't have been this much into music. Okay, इसके पहले तो मैं था ही नहीं. So same here. After my same here. exactly, yeah, I know the story. I watched the video, and तभी मुझे पता चला कि ऐसा था. You were not so much into photography, but फिर उसके बाद एक opportunity मिली, दूसरी opportunity मिली. That's how you grow. Yeah. And that's how you should grow. So just be yourself. That is what I have to say. And बस ऐसे सब टॉपिक आता तो मेरे वर्ड्स खत्म हो जाते. नहीं, पर अच्छा मैसेज था ना कि just be yourself. उसके लिए भी just be yourself. And Jairaj का मैसेज कि just stick to it and be yourself. भाई इससे we can make a whole TV show. Stick to it and be yourself. Ashlyn, बैंड का नाम क्या है? वो भी बता दे. स्टूडियो गागा. हमारा बैंड का नाम. Yeah, you can promote your band का name, your video as well right now. We'll add the link to our video if you want. That is the thing. That is the case. कि हम लोग इतने we did a lot of shows, we did a lot of competitions, but we don't have a video for ourselves to post anywhere. We don't have a YouTube channel. We have a very inactive Instagram page. We क्योंकि हमारा बैंड almost we क्या बोलते हैं, not separated but as a band नहीं रहा 2 साल पहले क्योंकि our keyboardist Aaron went to Chennai for further studies. Arpit went to France for further studies. Riya Nirma चली गई, and then a lot. You're muted. Yeah. Sorry, कॉल आ गया था बीच में. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे हमारा कुछ 6-7 लोगों का बैंड था, and we did a concert of ourselves in 2017. 17. Yes, 2017, 23rd February at HK Auditorium. इतना बड़ा लेवल का कॉन्सर्ट किया था. So that was the aim, to grow with the band and to grow the band further. But उसके अगले ही साल सबको अलग होना पड़ा क्योंकि कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया. And me and Jairaj were left here.
and और भी लोग आए. So we have right now Saryu with us, and Beatrix is with us, and Ryan is with us. So when we perform as a band, but we don't promote it as Studio Gaga so much. So it is like Jairaj, Saryu, Ashlyn, Ryan, Beatrix, and whoever is one performing for y'all, and not Studio Gaga. But we love, so Studio Gaga is a family, not only a band. Yeah. So it's still that WhatsApp group where we um, and discussing, we share songs, and also like हर 5 दिन में एक बंदा बोल ही देता है कि ये गाना करते, ये गाना करते, ये गाना करते, बट वो कभी आगे होता नहीं क्योंकि सब अलग अलग है और सब Yeah. अपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे. तो कभी टाइम मिल जाता था लाइक आई एंड सरयू कवर्ड अ सॉन्ग, नाउ आई सरयू जयराज एंड बीट्रिक्स आर डूइंग अ सॉन्ग, उसके बाद अर्पित के साथ आ रहा है. तो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बट बैंड नहीं है अभी ऐसा. Well, if you want to share any of your content, we can share it in this video, or anything you want to do, we can do it. Not a problem. Because trust me, for all our viewers out there, they are sincerely talented. I ain't kidding, and I sincerely mean that as a compliment to you guys. But you guys really do good quality stuff, and you guys will get the recognition soon. ऐसे तुम लोग तारीफ कर रहे थे हमारी. Amazing content. दर पे तारीफ. और चालू किया जेडी तू. हाँ गाइस चालू किया. तो तू बोल ना वही बता. कुछ भी कंटिन्यू कर. जेडी देख लेगा. आओ मैं देख लूँ. मैं बस वही बोल रहा था कि people needed something like this, some amazing funny and also insightful content like you guys are making. और मैं जैसे बोलते बोलते रुका था कि it is great that you guys started with the video of you all three, and तुम तीनों के बारे में भी पता चला. जैसे जयदीप को मैं थोड़े टाइम से जानता हूँ, बट मेरे को पता नहीं था how he started into photography and how जैसे मतलब EU में सारे प्रोजेक्ट्स उसको मिलना और ये सब कैसे हो रहा था मेरे को समझ में नहीं आता. हो रहा है वो पता है, बट how did he enter and everything. Also माया एंड जयराज जिस स्टोरी जितने भी हमने शेयर किए, आर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, तो ये भी लोगों तक पहुंचना इस जरूरी से ज्यादा लोगों को मजा आएगा ये सब सुनने में. सो दिस इज द कंटेंट दैट पीपल need right now, and they should get, instead of all the hatred that is going on YouTube. और मतलब ये this culture ही culture बना दिया. So this was supposed to be entertainment, but they are using it as a ladder to climb up the subscribers and viewers. और जो भी trending topic चल रहा है उसके against बोल दो तो तुम hit. यही चल रहा है. So that you guys are doing a great job on it, and more power to you. And let's have a drink for Ask How About. Thank you, bhai. Thank you so Thank you, much. guys. That means a lot. Really does. And sorry for stealing your line. No problem at all. You're a guest. It's fine. But that's like you said. Thank you for recognizing that. That's what we wanted to do. Giving people to talk about their stories. Like they know you guys as performers. Stage mein to yes, Jairaj is an awesome singer. He's an Ash's awesome entertainer. But why did you guys become the way you are? Why you want to pursue that? People don't know that. So that's why I thought it'd be good to do this therapy session. Tumko bhi maza aata hai. Like people who come on the streets just to have a discussion, have fun and talk about it. So I hope you guys had fun. And, Yes. So one second. अभी एक question है मेरे को. Okay. What do you mean by art? Oh, by the way, let me preface this. तुम दोनों को let me just say, Pratish loves such abstract questions. हर बार ऐसे ही questions पूछता है. Like you should, once you go and drink coffee or tea with him, right? 3-4 टी पीते हैं आराम से. उसके साथ साथ भाई what is art? भाई what is life? भाई what is science? वो कसोल चला जाता है एक बार में डायरेक्ट. Since you guys are artists, so I was curious. What do you mean by art? So for me, art is what comes from the heart. Yeah, क्या बात है. So not only art, but appreciating art is also art. Appreciating anything is also art. ये भी सबके पास नहीं होता. So not only singing and drawing and dancing and writing और photography और ये सब भी art नहीं होता. पर
अपने सबके अंदर एक आर्ट होता है. So our moms are artists. They make amazing food for us. They make the bed and everything. मतलब जो भी करते हैं, so there is art in everything. बस उसको देखने का नजरिया अलग होता है. And so that is what art is for me. काफी अच्छा बोल दिया नहीं मैंने? बहुत अच्छा ये तो प्रोमो में आएगा. बहुत अच्छा है यार. ये ट्रेलर में जानी चाहिए जेडी. अरे जयराज, what is art? So मेरे लिए personally art is like it is an escape, you know, from the routine मेरे लिए. And personally when I find art, I find myself. जब भी मैं अकेला होता हूँ, रियाज करता हूँ, स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, बाकी सब जो है वो तो है ही, पर that is the time when I am actually, you know, with me in myself. तो there is full 100% connection मेरे अंदर जो whatever you say soul है या जो भी है, it connects with me. And वो फिर जो बाहर आता है, the trance it creates, the, you know, it takes you places. So that is art for me. It's like a empty canvas. उस पे मैं, you know, singing से I carve the paintings. Amazing. ये I like क्या it. बढ़िया आंसर दिया तुम दोनों यार. लाइक ट्रेलर ही 5-10 मिनट का हो जाएगा मेरे ख्याल से. અને જયરાજ તે એક વાત કીધી કે તું મેડિટેશન કરે છે, કેટલા સમયથી કરે છે? હું મેડિટેશન 10th and 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग थी करोगे. ઓહ, So तो I ये started. एक बात रह गई वीडियो में बोलना, जयराज इज वेरी डिसिप्लिन. अगर बाकी जैसे कि मैं हूँ, इफ आई एम sitting with my guitar or my drums and playing it, so if my phone rings I will pick up the phone, but Jayaraj keeps the phone aside and he does his riyaz for I think 2 hours on a stretch. तो तभी जिसका भी कॉल आ जाए, किसी का भी कॉल आ जाए, कितना भी अर्जेंट काम भी हो जाए, but Jayaraj is into his music and in that trance and in that mood. So this also solves that question for all of you कि तुम लोग गाते टाइम या बजाते टाइम आंखें क्यों बंद कर लेते हो. So that is the one complaint I get from all the photographers and videographers कि actually में तुम आंखें बंद कर देते हो, तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं आती, सारे फोटो में आंखें बंद. तो ये है कि हम we are lost into it when we have that level of connection with the fellow artists and also our instruments and the music that we are making on the stage and also in the video. Yeah, So, basically you are in the zone. Yeah. Exactly. आप कोई भी हम चीज ले कसौल लो, even when you are, you know, smelling a flower, तो आंख बंद करते हो. आप खाना बन रहा है आजू बाजू, आप खा के ऐसे टेस्ट एंजॉय करते हो. So when you're closing the eyes, you're completely shutting off one sense, so you can focus on the other sense. So वो और ज्यादा हम उस बाजू जाने के लिए आंखें बंद करते हैं. मेरे पर्सनली कोई भी सिंगर और म्यूजिशियन हो तो आंखें बंद करते तो वी कैन सी लाइक, यू नो, द हार्मोनीज या नोट्स दिखते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस करते हैं. तो एक काइंड ऑफ जैसे अपन फोन है तो हम टाइप करते हैं, तो अभी विदाउट लुकिंग आल्सो वी कैन टाइप, वी नो वेयर द थिंग्स आर. सो वो आंखें बंद करके ऐसे वो दिखता है, ऐसे विजुअलाइजेशन होता है. सो तब भी आंखें बंद हो जाती है. एंड यू जस्ट, इट्स एज आई सेड, म्यूजिक इज फॉर मी एज इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. तो हो जाते हैं उसमें. यार क्या आंसर्स दिए यार मेरे को तो. लाइक wow. awesome. Like is just in the past 2 minutes you guys gave a philosophy lecture. मैं मस्ती नहीं कर रहा. I ain't kidding. इतना मस्त बोले. Seriously, I want to drink to that. Seriously. Yes, to Pratyush. Same to you. Excellent. All because of question, you guys. So I mean, I don't think you can get a better end than this. Like, you know, the way you think about it. So if in the future, for all you people out there, just close your eyes, take a minute, appreciate life, appreciate that sense of being in the moment, and you become an artist. That's where you find your true passion. That's what I took away from this. And well, guys, thank you so much for being here. Thank you for giving our channel a glowing review as well, first off, and also for sharing your insights as well. I hope you had fun as usual. That's the goal of this. And for Pratyush and Jaydeep, yeah, this is what we do, people. So for all our viewers out there, thank you for watching, and stay tuned for this Sunday. We have another episode on expert interview episode, and again another therapy session comes to an end. Cheers to all of you. Bas, done. We done. पलाटी बंद कर दो. तो इंटरव्यू खत्म ना. Yes, हाँ, तो जयराज एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी आपने बोला म्यूजिक इज एन एस्केप फॉर यू फ्रॉम द रियलिटी या फ्रॉम द मंडेन ब्लूज, राइट?
So let's say if you get a chance to you मतलब उसको ही अपना करियर बनाना है. So basically you will be in the escape all the time. So what would you prefer for an escape while being in that escape? Do you understand the question? Yeah, I understood it. So मेरे नाना actually he was a world renowned tabla player, Sudhir Kumar Saxena. So he has taught me that pain, pleasure, shortcomings, जो भी praise, fame, everything is temporary. Yeah. तो कॉल आ गया है. मेरे सही टाइम पे वो एकदम पोज हुआ है. अरे बात सब ऐसा करने, एक फोटो ऐसे स्क्रीनशॉट ले जेडी, सब ऐसा कर, उल्टा हाथ बे, उल्टा हाथ जेडी, उल्टा हाथ, प्रति सही हाथ था पहले. हाँ बस ऐसे उल्टा हाथ जेडी, उल्टा हाथ बे, तुम दोनों. अरे यार मेरा तो यहाँ स्क्रीन पे सही दिखा रहा है ना. बस ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना जब तो एडिट कर रहे हैं. सही है. एकदम मोमेंट में जयराज गायब हुआ है, उसको बुलाओ. अच्छा एशलिन, सेम क्वेश्चन टू यू. हाँ, so that is the point. You artists have managers. So while you make this your career, एक मिनट, जयराज का मैसेज आया. अरे भाई क्या हुआ? अरे ऐसा मस्त, ऐसा मोहन में अटक गया भाई तू. अरे वो कल बारिश में आज वाईफाई थोड़ा अनस्टेबल है भाई, इसलिए. अच्छा बारिश हो रही है उधर? नहीं, कल रात को हुई थी ना, पर सुबह से फिर ऐसा ही वाईफाई बहुत जोरदार. चेन्नई में भी हुआ था कल बारिश, पता है? हाँ भाई, इंडिया में हुआ था ब्रो. सिर्फ इधर हुआ. हाँ, पेन, प्लेजर. सो हाँ, मतलब ही टॉट मी के जो भी तुम कर रहे हो, कभी भी एक्सेस में मत करो. If it's, चलो for example take drinking, smoking, anything that gives you happiness also, never do it in excess, because that is not the way of life. Everything is proportional. If you see nature around us, it's creative but it's in proportion. अगर proportion में नहीं होता तो अजीब होता. Very true. तो तुम उस जितना है उतना करो. फिर तुम as a career भी ले रहे हो तो जितना टाइम डिवोट करना चाहिए उतना ही करो. For personal growth के लिए तुम कर रहे हो अलग है, but career में भी you stick to the that क्या कहते हैं, बॉर्डर्स के अंदर रहो. बाकी सब चलता रहता है. सो मेडिटेशन है. देन अदर देन दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड ऐसे सब. सो वो सब भी करते वक्त बहुत मजा आता है. So एक चीज, sorry to interrupt you, but you said economics and finance, right? I want to ask you personally because you must know this better than I can ever know. क्योंकि I'm a science student. क्या लगता है इकोनॉमी का अभी? Not just now, because my point is the way I analyze it. I know lots of stocks and bonds and how the economy works, but as a person who's in that field, the loans which are given out, and the people who have been taking money, and even for the government, paisa is not there. They're just giving something on air. So in the future, abhi now when the lockdown ends and once people get back normal, where will the money come from? Because people are acting like money है बैंक में ऐसे दे रहे, पैसा नहीं था. हाँ. सो मतलब इट्स कॉल्ड लाइक अभी इक्विलिब्रियम से शिफ्ट हो गई ये चीजें. सो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई, उसके बीच में इक्विलिब्रियम होता है. तो अभी सप्लाई कहीं और गया है तो आगे जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि सप्लाई में स्कैरसिटी आने वाली है और डिमांड अभी लॉकडाउन खुलेगा तो बढ़ेगी. सो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट इज डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, सो नेचुरली द प्राइसेस विल गो अप फॉर मेनी ऑफ द कमोडिटीज एंड एवरीथिंग. सो उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ेगी आगे जाके. लोगों के पास पैसा भी नहीं है. हाँ. तो रिसेशन आएगा कि क्या होगा? क्योंकि पहले भी इकोनॉमी धीरे था, काफी लॉकडाउन और कैटलिस्ट जैसा है. हाँ. सो वो तो आएगा ही और इन्फ्लेशन भी आएगा. वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट ना हो. वेरी रेयर चांस है, बट यू हैव टू टेक केयर. अर्जेंटीना हैज एक्सपीरियंस इन द पास्ट हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ उनका करेंसी लाइक आज का 100 रुपए है तो वो सेम चीज परसों 10,000 रुपए मिल रही है. 2 दिन के अंदर इतना हाइपर इन्फ्लेशन है. तो वो ऐसे तो चांस नहीं है कि बिकॉज टोटली द होल वर्ल्ड इज सफरिंग. तो इट्स काइंड ऑफ बैलेंस. अभी ऐसा होता कि भाई सिर्फ इंडिया सफर कर रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा होता. हाँ, तो जयराज एक बात सिखा सकता है कि ऐसे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा कोई सेपरेट लेक्चर ले सकते हैं.
पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट उतना तो मेरा अभी वो करना है आगे स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, तो ऐसे तो एडवाइस तो नहीं दे सकता। तो आप अभी सीधा जॉब में जा रहे हो कि? नहीं, अभी आई एम प्लानिंग टू गो टू LSC नेक्स्ट ईयर। अब तो आई वाज प्लानिंग टू गो इन सितंबर। London School of Economics. So that is the best college of economics anyone can go to. और जयराज जाएगा ही क्योंकि फर्स्ट रैंकर फॉर 5 years, और वहाँ पे भी आएगा ही, फर्स्ट रैंक का स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा मेरे को। No, yeah, good bro, good. No, that's actually good. Like, you know, अच्छा हुआ 2-3 एपिसोड का कंटेंट मिल गया। हाँ भाई चल ही रहा है भाई। No, but honestly, there is a very honest opinion. I've never seen many performers who do good in academics, whether it be performers or sports. So, not like, because let's face it, they are attuned to doing that good. So, like when I hear a guy who's like good in music so much and is good in stage, so that's like, yeah, you are one of a kind, Jessa. उसका श्रेय तो पर मेरे स्टडी से पीछे ऐसा है कि भाई मेरा म्यूजिक का, मेरा स्टडीज का दोनों इज फ्रॉम माय जेनेटिक्स, मेरे मम्मी पापा के जीन्स की वजह से। अदरवाइज तो मेरे मम्मी टॉपर थे गुजरात के, मेरे पापा सेकंड रैंकर गुजरात के सेम कॉलेज। फर्स्ट रैंकर और पापा सेकंड रैंकर, तो फिर फर्स्ट रैंकर। हाँ मतलब पापा ऐसा कहते हैं मम्मी की नोट्स पढ़ के पास हुए, बट और म्यूजिक का भी ऐसा है, मम्मी के साइड पूरा ईच एंड एवरी पर्सन मम्मी के साइड इज कनेक्टेड विद वोकल प्रोडक्शन इन सम वे और अनदर। मेरे नाना तबला म्यूजिक प्लेयर थे, मेरे नानी ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर थे, मेरे मौसी इज अ क्लासिकल एंड गजल सिंगर, मेरे मॉम इज अ कॉम्पेयर फॉर भाजपा एंड द गवर्नमेंट फंक्शंस, एंड मेरे मामा इज अ वाज अ सिंगर इन बॉलीवुड। तो सब ऐसे वैसे ही है। हाँ मतलब एज अभी है। मामा इज शैलेंद्र सिंह एंड द सिंगर ऑफ मैं शायर तो नहीं। So he was the voice of ऋषि कपूर। So मैं शायर तो नहीं, हमने तुमको देखा, फिर हम तुम कमरे में बंद हो। तो अब घर में ऐसे रोल मॉडल्स है तो वो तो कहीं से तो सब स्ट्रीम्स आने वाली थी अंदर। ट्रू। हाँ, but ऐसा नहीं कि भाई, I think you've done an outstanding job, क्योंकि even people with such good role models and lot of money, like they're like, हाँ हम क्यों करें, like वो tendency आता है, human tendency है, but you're like नहीं, I want to make something, really applaud your effort for that, seriously. अरे thank you. Personally I think हर person के लिए only one thing that matters is the gratefulness that keeps him on the ground, him on the ground, and you know it makes that person realize कि उसके पास क्या है, the value of that thing, and work on it. तो grateful, because आप कहीं भी देखो बाहर तो like हालात इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। जिनको सिंगिंग करनी है उनके पास पैसे नहीं है कि किसी गुरु के पास से सीखे, उनके पास हारमोनियम नहीं है, तानपुरा नहीं है। So in a way I'm very grateful के you know where I am born today, किस फैमिली में मैं birth लिया है मैंने, that way. Hey bro, let's keep in touch, हाँ भाई, like अभी पहली बार इतना अच्छे से बात करके हम like कि ना भाई इससे तो टच पे रहना चाहिए। Very deep. मैं सबके DM का आंसर दे दूँ। The trailer should start and stop at this point कि मैं सबके DM आंसर करता हूँ। And also if you want more viewers to go to the YouTube, ये ट्रेलर इंस्टाग्राम पे देख के तो जयराज से गाना गवा दो और वो ट्रेलर में इंक्लूड कर दो। भले फाइनल वीडियो में मत डालो, पर अगर जयराज का गाना ट्रेलर में होगा तो पक्का पूरा वीडियो देखेंगे। तो आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ लिसनिंग आवर्स। अच्छा, अभी जयराज एक वो बता रहा था, जैसे पॉइंट बता रहा था कि लाइफ में क्या क्या, तो अभी उसने अभी आप अटके थे तो एशलिन ने थोड़े पॉइंट्स डाले थे कि मैनेजर वो ऐसा कनेक्ट हो रहा था, तो एशलिन एक बारी खत्म करना उसको। हाँ, तो मैं बस वही बोल रहा था कि Ashwin, I don't know if you know, so that's what she said. तो खत्म करना, that's what she said. But I ain't a she. नहीं, like ऐसा joke है, like you know, oh my god, that's so big, that's what she said. Oh my god, it's so long, that's what she said. तो खत्म करना, that's what she said. we play a lot, yes, that's what she said वाला हम लोग स्टार्ट करते तो हर एक चीज में वैसा मतलब निकाल देते हैं। जयराज का दिमाग एक डायरेक्शन में सोच ही नहीं सकता,
वो 3 दिशाओं में सोचता है, उसमें से 2 गंदी सोच होगी और 1 सीधी सोच होगी. Creative, you know. Very Hey, creative. bhai, like you have to be creative for such jokes. Trust me, I know. Like you can't be a comedian without creativity. और अगर ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आया कि टुडे रिहर्सल्स एट 6 PM, कम अर्ली, तो सबसे पहले उस पे जयराज Come early. हंसने वाले. प्यार की ये राह तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं बोल रहा था. तो when an artist is pursuing his career into music or any form of art and he is reaching a certain level, उसके बाद he or she definitely needs the manager. क्योंकि जैसे escape की बात की, तो अभी this is our escape from the world. So that escape becomes our world after we take up this as a profession and we are doing good and हम अभी म्यूजिक सीन में, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद मैनेजिंग द पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ न्यू म्यूजिक एंड मेकिंग न्यू म्यूजिक इज अ लॉट ऑफ प्रेशर on the mind, heart and everything. So if there is someone to like manage all the professional parts and the communication parts, तो वो सब करता है. And the artist is only into music, so he is in his own world, in his own trance and making music for himself and also improving his skills while the professional part is taken care by the manager. So that plays a very important part. ये जो escape वाली बात बोली थी. Adding to his point, if I can, अगर time हो तो, like come on bro, come on. तो like ऐसा है कि करियर की तरफ सिलेक्ट कर रहे हो तो treat it as a escape only still, भले करियर, बट डोंट प्रेशराइज के काम है, बिकॉज उसकी वजह से जो क्रिएटिविटी निकलेगी वो बहुत मीडियोकर होगी. आप कोई भी फेमस पीपल, ए आर रहमान के आप देखो कितने सॉन्ग्स आते हैं साल में, बहुत कम, पर आते हैं तब ऐसे आते हैं कि भाई 6-7 साल एवरग्रीन, 6-7 साल भी नहीं. डेफिनेटली भाई, लाइक इवन लाइक 1990s में जो सॉन्ग्स आए थे जब हम छोटे थे भाई, अभी भी वो इट्स लाइक क्या बोलूं, रेलेवेंट. हाँ, सो वो क्रिएटिविटी जब इट्स अ प्रोसेस, वो आएगा तो अपने आप आएगा, पर आएगा तब ऐसा आएगा कि भाई सालों चलेगा. अब धोनी को देख लो, किसी को बोले बिना चला गया घर पे, वो ब्रेक पे ही है कब से, वर्ल्ड कप के बाद से. तो वैसा मैं धोनी के बहुत अच्छे फैन हूं. नहीं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने तो MS धोनी मूवी मैंने 26-27 बार देखी पूरी. Honestly, like there's this thing about Dhoni, like you know, just थोड़े क्रिकेट के बारे में बात किए तो I love cricket. I was supposed to be a cricket player, but मम्मी ने बोली नहीं तू पढ़ाई कर, तो इसलिए 10th तक I was a divisional cricket player तमिलनाडु में. Oh. Then I was like, मम्मी was like नहीं, हमारा background नहीं है. If you start focusing on this and if you don't hit big, then we have nothing. Education is key. We are a very low middle class family. Go to education. इसलिए I became a scientist. ये भी वो extreme. तो so my point is like, you know, I know what dedication क्या होता है and you know the mind जो होनी चाहिए cricketing mind brain के लिए. And as a captain, some of the decisions he took were pretty unorthodox. But इसलिए सही काम करते थे in big pressure moments. True. Virat Kohli is a good captain. I'm not saying no, but and he did not try to be someone else. He did not try कि भाई मैं द्रविड़ बन जाऊं, मैं सौरव गांगुली की तरह बनूं. Otherwise ही उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं होता. Because he's as Ashley ने जो एडवाइस दी खुद रहा, वो he stuck with his style of playing, the style of thinking, and that is why he is today. Like having idols is important. Ki yeah, we have to follow someone, but you cannot become them. No, you have to be yourself by following, by making the, you should use them as guides rather than becoming the difference. मतलब ऐसा है कि तुम उनके लाइफ से तुम अच्छी चीजें सीखो. भले क्रिकेटर है बट उनकी जो क्वालिटीज है वो हर जगह लाइफ में काम आ सकती है. उनकी सिंप्लिसिटी है, उनका स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक्चुअली कहीं भी प्रेशर सिचुएशंस में दे वुड बी वंडरफुल टू पोजेस सच स्किल्स. तो वो सब एब्सॉर्ब करो एंड देन तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है, तुम्हारी जो स्टाइल है, उसमें वो सब ऐड करो. उनका स्टाइल भी मत ले लो. By the way, like you know, Pratish bhi hai na, he's a wonderful artist. I don't know if you guys have seen Pratish's art. Actually not. Unka art is like seriously, like I was his roommate. He was a pain in the ass as a roommate, but uska art jo hai, by seriously, like I've barely seen such good art. Like just as a
एक दिन आता है हॉस्टल पे या घर पे, डोर लॉक करता है या उसकी साइड में रहता है, 3-4 घंटे के लिए कुछ बात ही नहीं करती, एंड दिस गाय लव्स टू टॉक। मेरे परेशान करते रहता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ या कुछ सोचता हूँ, उस टाइम भी परेशान करते रहता है। और उसका मन हो जाए जाके ही लॉक्स हिमसेल्फ या कुछ करता है, एंड देन ही लाइक ब्रो ये देख मैंने क्या किया, इतना अमेजिंग आर्ट ब्रो। I do not kid you, like you know, I only compliment people if they're good, and he's severely good, so check out his profile whenever you get the chance. Sure. And ये प्रत्युष मैंने अभी तक नहीं बोला। अब मैं इधर है। क्या करते हैं प्रत्युष? हाँ जी, मेरी am I audible? हाँ, Yes, yeah. Okay. So basically I'm a fine art artist and a graphic designer. Wow, that's great. तो हमारा आज मेरा का ऐसा डिजाइन जो भी है ना वो प्रत्युष ही डिजाइन किया है। अच्छा, okay. बढ़िया। तो जैसे आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, मैं ऐसा कैनवस वाला आर्टिस्ट हूँ। तो प्रत्युष, I Literally. have a question. Yeah, What is yeah. art? What is art? See, basically, according to me, art is a form of personal expression. तो अभी जब तक मैं अपना पर्सनल एक्सप्रेशन उसमें डालूंगा नहीं, तब तक वो आर्ट मेरा नहीं रहेगा। लेट्स से आई कॉपी पिकासो, बराबर, तब वो कॉपी रहेगा। ऐसा क्यूबिज्म आएगा, उसने डाला, जब तक मैं उसमें अपना फ्लेवर नहीं डालूंगा तब तक वो ऐसा प्रत्युष का क्यूबिज्म नहीं बनेगा। तो बेसिकली आर्ट अकॉर्डिंग टू मी इज पर्सनल एक्सप्रेशन। और बस अभी जेडी तेरा वर्जन ऑफ आर्ट क्या है? मैं कसौल ले गया भाई अभी। अरे तुम लोग नहीं जानते, प्रत्युष कसौल गया 17 डेज के लिए एंड आया 1000 स्टोरीज लेके। Obviously, कसौल, और कसौल जाके वो ऐसे पेंटिंग करने के लिए गया होगा। मैं सिर्फ ऐसा वर्चुअल पेंटिंग बना रहा था। चलो तो और कुछ बात करें कि आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट हो गया, वैसे भी 7 मिनट ही है। यस, हाँ, इसका भी टाइम आउट हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत मेरे को तो मजा आया। इवन इफ मुझे बहुत मजा आया। सेम बहुत मजा आया सबको। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मजा आया। ये पार्ट पता नहीं इंटरव्यू में थेरेपी सेशन में जाएगा कि नहीं, बट जस्ट लाइक कुछ जाएगा, मैंने रिकॉर्ड चालू रखा है, कुछ जाएगा। So some of the conversation we had actually was one of my favorites. Last time भी 1 घंटे के लिए गया था थेरेपी सेशन हमारे दो दोस्त के, but yeah, this was really fun. ऐसा करते हैं। Yeah, actually it was. जयराज मैसेज करना मेरे को, भले मैं लड़की नहीं। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता जाता। ठीक है, चलो भाई, मजा आया सही में। We'll keep in touch. Bye. Yeah, definitely. Bye. Thank you. Bye. Thank you for watching the video. It really means a lot. So I hope you liked it. So please do like, share and subscribe.